Hello everyone. Hello, This is Ashrita here. this is Thank you Ashwita for here. joining in Thank this you for afternoon. joining in this afternoon. History History will remember COVID-19 through pictures, account of those lived to share their experiences, and reports filed by journalists across the globe. With coronavirus spreading to all parts of the world, the task of documenting and reporting the news to millions has kept media on its toes despite the risk of contracting the virus. Journalism has always called for reporting from the field, especially during a crisis. Covering this pandemic has become the priority of all the media channels. When fear and panic is spreading out faster like a virus, it becomes utterly important for media to disseminate correct information. Journalists are working round the clock to provide readers and viewers with comprehensive, up to date reporting in this situation. They have been working relentlessly before and during the lockdown, documenting corona cases, suffering of migrant workers, and exposing government mishandling of health emergencies. All along, no one anticipated, least of all media organizations, that if doctors, nurses, and police officers in the front lines were getting infected, journalists could be next. We deeply value the role of reporters and media professionals and their untiring contribution to keep the public informed about this crisis. As an aspiring journalist, please carefully listen to the speaker to understand the role of media during this pandemic. Our speaker of the day, Ms. Sarvapriya Sangwan, will be highlighting the following points in her talk. She will be telling about accuracy and verification of data, how did viewers perceive the information, sensational media coverage, and low polarization, Dhruvi Karan. The webinar is of 60 minutes long, in which our speaker will deliver for 30 minutes, and after that, we will try to take as many questions as possible. You can drop in your question on your Facebook page, in which we are streaming live. Before taking much of your time, I would like to request our student Himanshu Singh Chandel to moderate the session, starting with the introduction of our speaker. Over to you, Himanshu. बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़े सभी शिक्षकों को प्रणाम एवं समस्त मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु सिंह चंदेल मध्यस्थ के रूप में इस जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के लाइव सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र का विषय है कोविड-19 के दौरान मीडिया की भूमिका। इस विषय पर बोलने के लिए आज हमारी खास मेहमान हैं सर्वप्रिया सांगवान जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम आपको मैम के परिचय से रूबरू करा देते हैं। मैम का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद मैम डेंटिस्ट बनी, लेकिन फिर मैम ने पत्रकारिता की ओर अपना कदम बढ़ाया और पत्रकारिता की डिग्री लेने के बाद मैम ने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत एनडीटीवी से की। मैम को रवि सर के साथ कई शो में देखा जा सकता है और एनडीटीवी में मैम ने एंकर के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में मैम बीबीसी हिंदी में सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। मैम को कई पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। तो हम आपको बता देते हैं, हाल ही में 20 जनवरी 2019 को मैम को रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी नवाजा गया है। उससे पहले मैम को रेड इंक अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब मैं मैम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वह अब अपने संबोधन से इस सत्र की शुरुआत करें और उत्साहित दर्शकों के इंतजार का अंत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस इंट्रोडक्शन के लिए, और आश्रिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो पिछले जब 10 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया पत्रकारिता, तो इस तरह का हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हम बात करेंगे और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, मैं हमेशा अभी से ये सोचने लगती हूँ कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। हाँ, यही बात है कि हर जर्नलिस्ट को ऐसे ही सोचना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है और किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर रहा जाए, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और अभी कोरोना जब पेंडेमिक का कवरेज हुआ उसमें भी देखने को मिला। तो मैं जहाँ से शुरुआत करूंगी वो है जब कोरोना शुरू हुआ तो लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे कि इसे चाइनीज वायरस कहा जाए। मतलब इसके फिर लोगों ने तर्क दिया कि किसी देश के नाम पर किसी बीमारी को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि स्पेनिश फ्लू भी तो नाम दिया गया था।
तो हुआ ये था कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि स्पेन से ये शुरू ही नहीं हुआ था, तब भी इसे स्पेनिश फ्लू कहा जा रहा है। माना जाता है कि अमेरिका, यूके में शुरू हुआ, लेकिन वहां पब्लिक का मोराल डाउन ना हो, मनोबल कम ना हो, इसलिए मीडिया ने इस खबर को दबाया। लेकिन क्योंकि वॉर टाइम चल रहा था, वहां पे युद्ध में कई देश संलिप्त थे, लेकिन स्पेन एक न्यूट्रल कंट्री था, तो वहां पर जब केस आने लगे तो इसे रिपोर्ट किया गया। वहां के राजा को भी फ्लू हुआ, तो उसके बाद से जब ये मीडिया में आया तो तब से इसका नाम स्पेनिश फ्लू ही पड़ गया। तो आप ये देखिए कि महामारी के दौरान या किसी भी क्राइसिस के दौरान सूचनाओं को कैसे सेंसर किया जाता है, कभी पब्लिक के मनोबल के नाम पर, कभी डॉक्टरों के, कभी सैनिकों के मनोबल के नाम पर। तो लेकिन क्या मीडिया को मनोबल को ध्यान में रख के ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, या उसका मेन काम है कि वो सूचनाएं आगे बढ़ाए और उस सूचना के आधार पर लोग अपनी राय बनाएं? आज जिस पॉलिटिकल माहौल में हम सब जी रहे हैं, वहां ये सवाल बार बार उठता है, और इसके लिए जनता से भी समर्थन जुटाना आसान होता है, क्योंकि भावनात्मक मुद्दा है। और ये भी भावनात्मक मुद्दा ही, बहुत लोग मतलब कितना कोरोना के वक्त में कितना इमोशनल और कितना इस तरह की कवरेज हुई कि कभी फियर और डर, इस तरह की चीजें हो रही थी। तो भावनात्मक मुद्दा तो लोगों का समर्थन भी उसके लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। अब जैसे कश्मीर में जब 370 हटा, तो एक तबका ये कहता रहा कि विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, भारत की बेइज्जती की जा रही है वगैरह। तो अगर इसी तर्क पर हम जाएं, तो अगर हांगकांग में जो विरोध प्रदर्शन दिखाने से चीन भी यही बात कह सकता है कि आप तो कि विदेशी मीडिया चीन की छवि खराब करने में लगा है। अभी अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रदर्शन हुआ, इतने मतलब बहुत बड़े स्तर पर, उसमें अमेरिका भी ये कहेगा कि मीडिया तो हमारी बेइज्जती करने में लगा है। तो फिर मीडिया को कौन सी सूचनाएं दिखानी चाहिए? क्या वो सूचनाएं जो उन लोगों के बायसेस को कंफर्म करे? अब बायसेस कंफर्म की बात है, अगर मान लीजिए अब ये कोई रिसर्च का भी मुद्दा नहीं है, कि बहुत ही आम बात है, सामान्य बात है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग तो कम्युनल हैं, ज्यादातर लोग रेसिस्ट हैं, ज्यादातर लोग होमोफोबिक हैं, या महिला विरोधी चीजें बोलते। तो क्या ये जो बायसेस लोगों के ऑलरेडी हैं, तो उन्हें कंफर्म करें, उनके हिसाब से रिपोर्टिंग की जाए, उनके हिसाब से न्यूज चले, या इस प्रोग्रेस के जो प्रोग्रेस के रास्ते पर मीडिया को लोगों को बढ़ाना चाहिए? अब भाई भारत चीन में भी सीमा पर विवाद चल रहा है। अगर भारत की इंडिपेंडेंट मीडिया की कवरेज देखें और चीन की कंट्रोल्ड मीडिया की कवरेज इस पर देखें, तो उसमें बहुत अंतर नहीं है। दोनों ही देशों की मीडिया अपने अपने देश की सरकार के हिसाब से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा ही भारत और पाकिस्तान के किसी विवाद में होता है, दोनों देशों की मीडिया एक तरह से कवरेज करती है। इन तीनों देशों की मीडिया अपनी सरकार की दी गई सूचना को प्रोपेगेट करती है, उस सूचना पर भरोसा दिलाती है। कल एक न्यूज चैनल ने तो व्हाट्सएप पर घूम रहा एक फेक न्यूज मैसेज तक अपने कार्यक्रम में पढ़ दिया, जिसमें चीनी सैनिकों के नाम थे जो मारे गए थे, और एक्सक्लूसिव कहकर बड़े सेंसेशनल तरीके से, और एक फेक जानकारी लोगों में चली गई। ऐसे न जाने कितने उदाहरण है, और अगर मैं इन पर बात करने लगी तो फिर मुझे शायद पूरा दिन ये लेक्चर देना पड़ेगा। तो सोचिए, जब ये सभी देश अपनी सरकारों का एजेंडा ही चला रहे हैं, तो लोगों को सच्चाई कैसे पता चलेगी, और फिर मीडिया का रोल क्या है फिर उसमें? तो खैर, बात करते हैं पेंडेमिक की, इस महामारी की। तो सबसे पहले बात आती है इंफॉर्मेशन की, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और एनालाइज करने की, और फिर उस पर एक्ट करने की। दिसंबर के आखिर में चीन ने डब्ल्यूएचओ को कोरोना वायरस रिपोर्ट किया। डब्ल्यूएचओ ने इंफॉर्मेशन सभी देशों के साथ साझा की। अभी इंफॉर्मेशन सरकार को प्रोसेस और एनालाइज करनी थी, और मीडिया को भी प्रोसेस और एनालाइज करनी थी, लेकिन भारत में मीडिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में भी कोई ऐसा स्टेप देखने को नहीं मिला। 27 जनवरी को बीबीसी ने रिपोर्ट किया, मैंने ही उसमें एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाया, कि चीन एक स्पेशल अस्पताल बनाने जा रहा है कोरोना वायरस के लिए। मतलब 10 दिन में वो अस्पताल उन्होंने बना भी लिया। तो 27 जनवरी, आप डेट देखिए, 27 जनवरी। और कई देशों ने जनवरी में भी कदम उठाने शुरू किए। जर्मनी ने, जापान ने, इसराइल ने टेस्ट किट बनाए, या कुछ फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्शंस किए, पीपीई किट तैयार किए। और भारतीय मीडिया में उस वक्त इसकी कवरेज ना के बराबर थी। अगर सरकार किसी इंपॉर्टेंट विषय पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये काम मीडिया का ही है कि वो सरकार का ध्यान उस पर दिलाए। सरकार का ये काम नहीं है कि वो मीडिया को ध्यान दिलाए कि आपको क्या करना है। तो बहुत बेसिक फंडा है, मीडिया पब्लिक डिबेट का एजेंडा सेट करती है। न्यूज हमें ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, लेकिन ये जरूर बताती है कि हमें किस बारे में सोचना है। और कितने ही रिसर्च में साबित हो चुका है, जो मुद्दा मीडिया में प्रोमिनेंट होता है, पब्लिक के लिए वो इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है।
पहले भी कई एपिडेमिक या पैंडेमिक हो चुके हैं, जैसे इबोला, सार्स वगैरह। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार किसी बीमारी को फेस किया है। और अगर दुनिया भर के कुछ अंग्रेजी अखबार और चैनलों को एनालाइज किया जाए तो फियर, अफ्रेड, डेडली वायरस शब्द का काफी इस्तेमाल किया गया कोरोना कवरेज में। लेकिन हिंदी न्यूज में इसकी कवरेज के लिए लॉकडाउन करना पड़ा। न्यूज रूम इस लॉकडाउन के लिए भी तैयार नहीं थे, ना उनके दफ्तर अपने एम्प्लॉयज के लिए और ना कवरेज के लिए। 24 घंटे का कंटेंट बनाना मुश्किल हो गया था, अंताक्षरी वगैरह खेलकर भी टाइम पास करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ना ही भारतीय मीडिया में हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, साइंस रिपोर्टर्स हैं, ना लेबर राइट्स को रिपोर्ट करने वाले या रूरल रिपोर्टर्स। तो कोविड-19 भी मीडिया के लिए एक इवेंट था जिसकी इवेंट रिपोर्टिंग हुई। इवेंट जब चला जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी चली जाती है। जब एक्सपर्ट्स नहीं हैं और एंकर्स बिना तैयारी के खुद को एक्सपर्ट दिखाने लगते हैं और ओपिनियंस प्रोपेगेट करने लगते हैं, तो फिर नुकसान पूरे देश का ही होता है, क्योंकि लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पा रही या सरकार की बद इंतजामी भी की खबर भी नहीं पहुंच पा रही। अलग अलग वर्ग के लोगों में अधकचरे इस ज्ञान से सिर्फ पोलराइजेशन पैदा होता है। तो जो डाइवर्स सोसाइटी जो सालों से एक दूसरे के साथ रहना सीख रही है, वो पोलराइज सोसाइटी में तब्दील होने लगती है। जैसा हमने देखा कि तबलीगी जमात की कवरेज में किस तरह से चीजें हुई। फिर न्यूज चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसीज अब एडिटर्स तय नहीं करते हैं, वो लोग तय करते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में है। तो चाहे आप न्यूज रूम में कितने ही अच्छे पत्रकार ले आए, डाइवर्सिटी ले आए, लेकिन कैपिटलिज्म ने न्यूज रूम पर पूरा कब्जा कर लिया है और इस मॉडल को बदलना आसान नहीं है। कवरेज के दौरान एक और समस्या ये रही कि कोविड-19 को लेकर जो आंकड़े हमारे सामने आते रहे, उसको वेरीफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, कोई साधन ही नहीं था। जो सरकारों ने बताया, हमें उसको इन्फॉर्मेशन को उसको आगे बढ़ाया। तो जो भी उन्होंने बताया कि इतने लोगों की मौत हुई है या इतने लोग संक्रमित हैं या इतने लोग ठीक हो चुके हैं, तो या इतने टेस्ट हो रहे हैं, तो हम वही आपके सामने या लोगों के सामने उसे प्रोपेगेट कर रहे थे। तो जब सारा ध्यान कोरोना पर था, तो उसकी वजह से बाकी हेल्थ सर्विसेज को क्या नुकसान हुआ, उस नुकसान से कितनी डेथ्स हुई। बात ये है कि आप पिछले जो एपिडेमिक्स देखें, मतलब दुनिया भर में जो हुए हैं, चाहे इबोला है या सार्स है या मर्स है, जो भी उनके जो उसके बाद जो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स के बाद जो रिसर्च हुए, तो वहां पे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जैसे एक जगह पर इस तरह से हुआ कि जब इबोला आया तो सबसे पहले जो असर पड़ा वो मैटरनल हेल्थ पर पड़ा, क्योंकि जो ओपीडीज थी वो बंद थी और सारा फोकस इबोला पर था और मैटरनल जो हेल्थ सर्विसेज थी उस पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो महिलाओं को एक अलग तरीके से इससे जूझना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे पैंडेमिक सीजन के बाद में रिसर्च हुआ और जिसके बारे में ये चीजें निकल कर सामने आई कि बाकी हेल्थ सर्विसेज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो अब इस जो हेल्थ सर्विसेज जब प्रभावित हो रही हैं, तो जिन लोगों की ओपन हार्ट सर्जरीज होनी थी, मतलब, और वो डॉक्टर्स, मतलब जो एक डॉक्टर रोज 2 ओपन हार्ट सर्जरीज कर रहा था, उसने 1-2 महीने से कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं की। और ओपन हार्ट सर्जरी आप समझते हैं कि जब बिल्कुल इंसान एकदम ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है बीमारी के कि बस उस सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं रहता, मतलब वो इतना सीरियस होता है, तब ये करनी पड़ती है। और सोचिए कितने लोगों को इसकी वजह से मतलब उनकी बीमारी या तो गंभीर हो गई होगी या उनकी डेथ्स हो गई होंगी, तो वो तो चीजें सामने निकल कर आई ही नहीं। और मीडिया में अब भी महानगरों की बात हो रही है, जैसे दिल्ली और मुंबई। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब महानगरों में तो फिर भी बेहतर इंतजाम है। तो ये बाकी राज्यों में तो कैसा हाल होगा या वहाँ की क्या स्थिति है, मैं कोई एज्यूम नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या स्थिति है ये तो सामने आना चाहिए कि वहां पर हेल्थ सर्विसेज किस तरह से काम कर रही हैं या वहां पर इंतजाम है या नहीं है, और लोगों पर इसका कितना असर पड़ रहा है, वो सब है ही नहीं, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया ने बेशक एक प्लेटफॉर्म दिया है आम लोगों को, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जो निजी हित में फेक न्यूज फैलाता है। फेक न्यूज मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसके लिए अलग लेक्चर्स की जरूरत होगी। और आप लोग जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं या अब जो पढ़ा भी रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज अब यही होने वाला है आगे। क्योंकि जिन आप सोचे जिन मीडिया हाउसेस की अपनी फैक्ट चेकिंग टीम्स भी बना ली गई हैं, वहां पर भी फेक व्हाट्सएप मैसेज पब्लिश कर दिया जाता है। तो आप सोचिए फिर हाल, मतलब इसको ठीक कौन करेगा? ये काम तो मीडिया का ही था कि जो फेक न्यूज फैल रही है उसको मीडिया ठीक करे, लेकिन मीडिया ही जब ये काम कर रहा है तो फिर उसको कैसे ठीक किया जाएगा? आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता फेक न्यूज फैला रहे हैं और अपने निजी हित के लिए, और सिर्फ अपने निजी हित के लिए, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कोरोना की कवरेज के दौरान भी हमने कितने ही घरेलू नुस्खे पोस्ट किए जा रहे थे, अलग अलग तरह की
इंफॉर्मेशन पोस्ट की जा रही थी जो गलत थी, जो लोगों के हित में नहीं थी, और कई लोग इस बीमारी को कैजुअल बना दे रहे थे, कई बहुत ज्यादा उसको सेंसेशनल बना दे रहे थे। अब जैसे आप गर्मी को लेकर ही देखिए, जब शुरू में बात हो रही थी, कितने मतलब यूट्यूब पे जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं आजकल, या कुछ और अब उसमें एक्सपर्ट्स वो कह रहे थे कि नहीं गर्मी होगी तो कोरोना का असर अपने आप खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। ये किस आधार पर कहा जा रहा था, ये कौन से रिसर्च के आधार पर कहा जा रहा था, किसी को नहीं पता है। आ, लेकिन आप सोचिए अभी गर्मी है, जून जो इंडिया में जून का महीना जो सबसे ज्यादा गर्मी वाला है, उस वक्त भी कितने केसेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं, रोज 10-11 हजार केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसके बारे में तो अभी बात भी नहीं हो रही है। तो सोचिए कि उस टाइम जब हम ये बता रहे थे लोगों को, जो जितने भी रिसर्च उस वक्त अवेलेबल थे गर्मी को लेकर और गर्मी के असर कोरोना वायरस को लेकर, जब हमने वो वीडियोस बनाई और वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पास की, तो लोग इसको मानने को ही रेडी नहीं थे। मतलब लोगों को लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, नहीं मतलब फेक न्यूज से वो इतने भरे हुए हैं, और सोशल मीडिया के अलग अलग स्वयंभू एक्सपर्ट से वो इतने ज्यादा एक जाल उनके सामने रचा हुआ है कि एक्चुअल में जो मीडिया उनको सही खबर भी दे रहा है और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्हें बता रहा है, उस पर विश्वास करने को भी तैयार नहीं। उसके बाद फिर और जो रिसर्च आती रही, धीरे धीरे शायद कुछ एक आधे रिसर्च में इस तरह की बात निकलने लगी कि हाँ शायद कुछ असर होगा गर्मी का। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है हम वो देना चाहते हैं लोगों को कि चलिए अभी अभी फिलहाल एक रिसर्च ये आई है और एक रिसर्च ये आई है और ये है। उसमें ये ओपिनियन नहीं है कि इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, गर्मी का असर पड़ेगा या मौसम का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में लोग यही सुनना चाहते हैं। और इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि हाउ पीपल परसीव द मैसेज। जहां मैं बात कर रही थी कि बड़े बड़े नेता भी इसमें लगे हैं फेक न्यूज को लेकर। आप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लीजिए, उन्होंने भी इस तरह की बात कही, आप डिसइंफेक्टेंट पी लें उसका असर बढ़ जाएगा कोरोना पे। कुछ दिन बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन उनकी इस फेक न्यूज की वजह से, उनके इस बयान की वजह से कुछ लोगों ने एक्चुअल में डिसइंफेक्टेंट पी लिया, कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई। अभी आप ब्राजील के प्रधानमंत्री को बोल्सोनारो को ले लीजिए, उन्होंने इसको इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके पेश किया अपनी जनता को, ये तो एक नॉर्मल फ्लू है, ऐसे इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, अरे नहीं ऐसे नहीं है। मतलब तो आप सोचिए ब्राजील तो अभी मतलब एक तरह से पूरा वो बन गया है, हब बन गया है, सेंटर बन गया है जहाँ पे सब इतने ज्यादा केसेस है। अमेरिका में आपने देखा कितनी डेथ्स हुई है। तो जहां जहां इस तरह से फेक न्यूज, इस तरह के जो लीडर्स हैं जो फेक न्यूज को प्रोपेगेट कर रहे हैं और जो थोड़े से इस तरह की आइडियोलॉजी के हैं को मानने को तैयार, मतलब वो अपनी जो चेस्ट थम्पिंग जिसे कहते हैं उसमें ज्यादा लगे रहे कि हम तो अपनी तरफ से हर चीज कर रहे हैं और बाकी कसूर ही किसी और चीज का, या तो मीडिया का, उनकी वहां की जो मीडिया जो दिखा रही है उसका कसूर है या लोगों का कसूर है, जो अपनी चेस्ट थम्पिंग में बहुत ज्यादा लगे रहे और इंतजाम में पीछे रहे और फेक न्यूज को और ज्यादा प्रोपेगेट करते रहे। तो ये पैंडेमिक में फेक न्यूज से निपटना बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो किसी और भी क्राइसिस में निपटना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये काम मीडिया का ही है कि वो इस तरह के टूल्स सीखे और इस तरह के एक क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग डेवलप करे अपने रिपोर्टर्स में या अपने जितने भी जर्नलिस्ट जो डेस्क पे काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कि वो एकदम से किसी भी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करना सीखें। और वो जैसे बीबीसी में होता है कि जब तक आप 2 सोर्सेस से कंफर्म नहीं कर लेते किसी इन्फॉर्मेशन को, वो छापते नहीं है, चाहे आप लेट हो जाए, आप चाहे एक दिन बाद छापे। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, सालों लगते हैं उस पे काम करने में। लेकिन अगर हम आज भी शुरू करेंगे तो भी सोचिए बहुत लंबा वक्त लगेगा कि इंडियन मीडिया ये सीख सकेगी कि फेक न्यूज से कैसे निपटा जाए और कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, कौन सी एक एजेंडा है या प्रोपेगेंडा है, उसको समझने में। वो ट्रेनिंग अभी जर्नलिस्ट की नहीं है यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं सोर्स वाली खबरों पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी। एक तो ये सोर्स जो है कि जो सोर्स से कई खबरें कह दी जाती हैं कि सोर्स ने हमें ये बताया, सोर्स ने हमें ये बताया, कई बार ये क्वेश्चन और लोगों के भी दिमाग में नहीं आता है और जनता के और खुद जर्नलिस्ट के दिमाग में भी नहीं आता है कि मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी मैं कल की एक न्यूज देख रही थी, उसमें बताया गया कि सोर्स ने बताया है कि चीन के इतने सैनिक मारे गए हैं।
सोर्स ने क्यों बताया, ये भारत सरकार आकर क्यों नहीं कह रही है वाली बात कि इतने इतने लोगों का वहां पे कैजुअलिटी हुई है या इतने लोगों का नुकसान हुआ है, भारत सरकार भी कह सकती है, जैसे उन्होंने अपने देश के लोगों का बताया है। तो इस सोर्स से क्यों चीजें बताई जा रही है? एक बहुत कुछ साल पहले भी मैं ये चीज देख रही थी, सोर्स से खबर थी कि उस टाइम ये बात हो रही थी कि सरकार ने पेंशन जिन लोगों जो विकलांग पेंशनधारी हैं इंडियन आर्मी के या डिफेंस सर्विसेज के, उनकी पेंशन शायद कम हो रही है इस तरह से। तो इस बात पे थोड़ा हंगामा भी हुआ मीडिया में, लेकिन कुछ एक दिन फिर अगले दिन किसी अखबार ने इसको छापा सोर्स के हवाले से कि सोर्स से हमें पता चला, मिनिस्ट्री के सोर्स ने कहा है कि नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है कि इस बात को सोर्स से कहने की क्या जरूरत है? ये तो साफ सामने आगे कहने वाली बात है कि हाँ भाई ये फैसला है या ये फैसला नहीं है। क्यों ये जरूरी है? मतलब सोर्स की आपको जरूरत तब पड़ती है जब आ, मान लीजिए कोई ऐसी कोई घटना है या ऐसी कोई बात है कि जहां पर विसल ब्लोअर है कोई, उसको उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए हमको कोई बात सोर्स से कहनी पड़ती है कि हमारे सोर्स ने। लेकिन ये जो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जिनको सरकार को आराम से आके कहना चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको सोर्स के द्वारा क्यों कहा जा रहा है? तो क्या ये सिर्फ लोगों के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करने के लिए है कि वो एक जो हंगामा हो गया उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए है? तो ये तो बहुत ध्यान में रखने की बात है। सोर्स वाली खबरों के लिए बहुत ज्यादा हमें अवेयर रहना पड़ेगा। और दूसरा कि बीमारी की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे इस महामारी का असर किस पर ज्यादा पड़ेगा, इसे भी मीडिया ने नहीं सोचा, उसे समझ ही नहीं पाई। इसलिए 2 महीने से भी ज्यादा हुआ और मजदूर अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य भी नहीं जा पाए। मजदूरों पर जो भी रिपोर्टिंग हुई वो भी एक इवेंट रिपोर्टिंग का ही हिस्सा था, मतलब किसी एक ने शुरू कर दिया फिर दूसरे ने भी जाके कर दिया वही। लेकिन वरना लेबर रिपोर्टिंग और रूरल रिपोर्टिंग अपने आप में एक अलग बीट है और किसी संस्थान में वो नहीं है। बाकी फिर मैं एक बात करती थी कि हाउ पीपल परसीव द मैसेज, ये एक बड़ी चीज है कि लोग जो अभी जो मीडिया लिटरेसी का जो हाल है भारत में, जो ऑडियंस है हमारी, उसमें ये मीडिया लिटरेसी बिल्कुल ना के बराबर ही है। अभी जो एक आदत हो गई है लोगों को भड़काऊ पढ़ने की और भड़काऊ लिखने की, सोशल मीडिया की वजह से उनको वो आदत हो गई है और उनको ओपिनियंस की आदत है। आपको इनको एक इंफॉर्मेशन देंगे या कोई आप उन्हें एक अच्छे से रिसर्च वेल रिसर्च पीस देंगे, वो उसमें उतना उससे इंगेज नहीं करते हैं जितना वो ओपिनियन से इंगेज करते हैं। मतलब अगर आप उन्हें बताइए कि भाई गर्मी का असर कोरोना पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप इसे ऐसे बोलिए, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इस बारे में जानना नहीं चाह रहे कि आपने किस आधार पे, किस सोर्स से और किस फैक्ट की वजह से ये बात कही है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और अगर आप उन्हें वो ओपिनियन नहीं दे रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आप सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, मतलब आप बेकार हैं, आप छोड़ दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात कि जब भी इंफॉर्मेशन देनी, अब कोरोना के बारे में जब भी लगातार हमने बहुत सारे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए इंफॉर्मेशन के लिए और बहुत सारे फैक्ट चेकिंग भी किया। मान लीजिए अभी अगर आप ये बता रहे हैं कि नहीं लहसुन खाने से ऐसा नहीं हो सकता कि लहसुन खा लिया तो असर नहीं पड़ेगा, कि कोरोना होगा नहीं आपको, या आप कोई योग कर रहे हैं उसकी वजह से कोरोना नहीं होगा, ये जब आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो लोग आपको इस तरह से कमेंट करते हैं कि आप हमें डरा रहे हैं, जबकि डराना नहीं है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप एक भ्रम के लिए, एक भ्रम की स्थिति में रहना चाहते हैं, इससे आपको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मतलब मैं लहसुन खा लूंगा या मैं अदरक खा लूंगा और तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। तो ये एक जो लोग कैसे परसीव करते हैं मैसेज को, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आ, ये चीज हो सकती है या ये चीज नहीं हो सकती है, मतलब वो ये नहीं जानना चाहते कि सख्ती वाला जो ये वर्ड है उसको वो परसीव उस तरह से नहीं करते हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस कंपनी का ये दावा है या इस सरकार का ये दावा है या इस देश का ये दावा है, दावा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दावा कर रहे हैं, ये मैं एक रिपोर्टर या मैं एक जर्नलिस्ट ये आपको नहीं बता रही हूँ, उनका दावा है। लेकिन लोग उसको भी नहीं समझते हैं कि नहीं ये उनका दावा है। दावा वर्ड इज इम्पोर्टेंट कि कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो हर वर्ड का एक बहुत एक मीनिंग है और ये भी जर्नलिस्ट को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बीबीसी ने खासकर इस चीज को बहुत ज्यादा फेस किया है कि लोग कहते हैं कि नहीं आप शहीद क्यों नहीं कहते हैं अगर कोई सेना का जवान अगर
मर जाता है। उनको वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो जो भी भावनात्मक जो चीजें हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयर और बहुत ज्यादा कॉन्शियस कहेंगे कि नहीं आप शहीद बोलिए, या आप भारत प्रशासित कश्मीर क्यों कहते हैं, आप उसको पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्यों कहते हैं, उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहिए। जबकि अगर जो कोई न्यूट्रल मीडिया एजेंसी है वो उसको उसी तरह से लेगी, न्यूट्रल तरीके से लेगी, जो हालात है उसको लेके। लेकिन क्योंकि लोग चाहते हैं कि नहीं, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करे, कि इंडिया के हित को सोचते हुए, तो वही बात फिर से आ जाती है कि अगर रिपोर्टर ये सोचने लगेगा कि कौन से देश का हित उसको देखना है, तो फिर प्रॉपर रिपोर्टिंग तो हो ही नहीं पाएगी। फिर तो चीन वाला चीन के हिसाब से करेगा, अमेरिका वाला अमेरिका के हिसाब से करेगा, और इंडिया वाला इंडिया, और पाकिस्तान वाला पाकिस्तान के हिसाब से। तो फिर एक्चुअल में जो स्थिति है या जो सच्चाई है या जो फैक्ट है वो तो छुप जाएगा, उसके हिसाब से तो फिर रिपोर्टिंग हो ही नहीं सकती है। और दूसरा ये कि लोग जो मैं मीडिया लिटरेसी की बात कर रही थी, कि आप भी जब जर्नलिस्ट भी किसी खबर को पढ़ते हैं या लोग भी जब उस खबर को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए उस वक्त, कि अगर ये व्यक्ति ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसने किसको एट्रीब्यूट किया है, एट्रीब्यूशन क्या है, मतलब इसने किसको कोट किया है, क्योंकि तभी वो जाके चेक भी कर सकता है रेफरेंस क्या है इस इन्फॉर्मेशन का। वो क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इसने सोर्स के हिसाब से कहा है तो इसने इस सोर्स के हिसाब से क्यों कहा है, तो रियलिटी में मतलब तो साफ सामने आके भी कहने वाली बात थी। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आने चाहिए, और ये भी धीरे धीरे ही लोगों को सिखाना पड़ेगा कि जब आप कोई भी चीज खबर पढ़ रहे हैं उसमें वो बैलेंस है कि नहीं है, उसमें सब वर्जन है कि नहीं है। अगर आप ऐसे एक तरफा चीजें नहीं कर सकता है, उस पर सरकार का क्या कहना है, सरकार का वर्जन भी होना चाहिए। और कोई सरकार का वर्जन है उस पर दूसरे एक्सपर्ट्स का इस पे क्या कहना, वो वर्जन भी होना चाहिए। अभी भी जो आगे आने वाला वक्त है जिसके लिए तैयार रहना चाहिए, कि एक तो अब हेल्थ सर्विसेज किस तरह से अफेक्ट हुई इसके बारे में हमें नहीं पता था, लेबरर्स किस तरह से अफेक्ट हुए हम इसके लिए तैयार नहीं थे उसको कवर करने के लिए। अब इकोनॉमी किस तरह से अफेक्ट होगी, उस इकोनॉमी को भी कवर करने के लिए क्या हमारे पास संसाधन है हमारे ऑफिस में, और क्या हमारे पास वो एक्सपर्ट्स हैं, वो रिपोर्टर्स हैं जो इसको सही 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 मायनों में रिपोर्ट कर पाए। मतलब अभी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्राइवेट संस्था है, जो एजेंसी है जो देखती है इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे नजर रखती है, तो उसने अप्रैल में बताया था, नहीं मई में उसकी खबर आई थी कि अप्रैल में, सिर्फ अप्रैल में 12 करोड़ नौकरियां गई हैं इस देश में, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, सैलरीड क्लासेस भी हैं। खुद मीडिया में कितनी नौकरियां जा रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब किसी भी बड़े स्तर पर, एडिटर लेवल तक। तो लेकिन हम अभी भी न्यूज में कहीं पर भी ये सब एजेंडा हमारे सामने नहीं आता है, अभी भी नहीं आ रहा नौकरियों को लेकर। मतलब किसी भी टाइम आप खोल लीजिए कोई न्यूज चैनल, या किसी भी वक्त ट्विटर, उन्हीं पत्रकारों के ट्विटर या फेसबुक हैंडल्स खोल लीजिए, या उनके यूट्यूब चैनल्स खोल लीजिए, आपको कहीं पर भी नजर ही नहीं आएगा जो एक्चुअल में जो सीधा सीधा हमें इम्पैक्ट कर रहा है, वो कोई मुद्दा सामने दिखता ही नहीं है। अभी भी जैसे अब भारत चीन का भी जो विवाद हो रहा है उस पे भी मतलब अपनी ओपिनियंस लोग बता रहे हैं, एंकर्स लोग बता रहे हैं, जबकि उन्हें इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए, और फिर लोग उस पे अपने आप उस इन्फॉर्मेशन पे अपनी ओपिनियन बनाए। एंकर ये नहीं कह सकता है कि आप इस चीज के बारे में बोलो या नहीं बोलो, ये एक ओपिनियन है, ये आप लोगों से कैसे इस बात पे कह सकते हो। और कौन वो लोग हैं, मतलब वही लोग जो बोल रहे हैं जिन्होंने कभी फॉलो भी नहीं किया है डिफेंस सर्विसेज में क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं बात करने लगूँ तो पता नहीं कितने एंकर्स जिनको ये पता है कि एफडीआई रूल्स चेंज हुए थे, और भारत ने जवाब दिया है कूटनीतिक तौर पर चीन को, एफडीआई रूल्स चेंज करके बिजनेस के तौर पर किस तरह से, या साउथ चाइना सी में उन्होंने अपना स्टैंड कैसे बदला है भारत ने। बहुत सारे उसके आयाम है, जब तक आप ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरह से ओपिनियंस बना रहे हैं जाकर। इसी तरह से जब हेल्थ रिपोर्टिंग हो रही है, जो कोरोना वायरस है, एक हेल्थ का एक इशू है, साइंस का इशू है, तो जब हमारे पास वो रिपोर्टर्स ही नहीं थे जिसको प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, तो या वो एंकर्स भी नहीं थे जिसे प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, तो किस वजह से कैसे वो ओपिनियंस दे सकते हैं। ये भी एक कुछ दर्शकों को कैसे इनको ये चीज पता है, और क्यों हमें उस चीज को मानना चाहिए। एक अर्ज है कि अभी भी जो आप एक सामान्य तौर पर मतलब जो देखेंगे मतलब जो प्राय ऐसा हो रहा है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन सरकारों को कहीं ना कहीं क्लीन चिट सा या देने का एक अर्ज नजर आता है मीडिया में,
जबकि सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के पास उस सिस्टम में बहुत सारा मैन पावर है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारा पैसा है। तो ये काम आम इंसान नहीं सोच सकता उस स्ट्रैटेजी को कि किस चीज से कैसे निपटा जाए। अगर ये विदेश मंत्रालय सोचेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय सोचेगा, उनके पास अपने लोग हैं, अपना रिसोर्सेज हैं, उनको इसलिए ही रखा गया है कि वो आम लोग से पहले स्ट्रैटेजीज डिसाइड करे। वो अभी भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना के भी वक्त में अब अगले 1.5 साल के लिए क्या इंडिया रेडी है, नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं जाने वाला है। ये अगले 1.5 साल तक की स्ट्रैटेजी आज प्लान हो जानी चाहिए कि हमें कैसे कैसे काम करना है। तो चेस्ट थम्पिंग में ना पड़ के, और हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब मैं आपसे भी अर्ज करूंगी कि क्योंकि जब मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ और मेरे बोलने से आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कुछ जो आप मुझसे पूछे, तो फिर फायदा नहीं है उस लेक्चर का। या इसी तरह से कोई भाषण दे रहा है, अगर चाहे कोई भी राहुल गांधी दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी दे रहे हैं या कोई और नेता दे रहा है, तो जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनकी बातों को लेकर, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज को वैसे ही परसीव कर लेने का। तो लेकिन सॉल्यूशन की बात यह है कि इसका कोई एक एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कोई इजी सॉल्यूशन भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन इंटरवेंशन ही है। मुझे मालूम है कि ये मॉडल बहुत इजीली हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आप इंटरवेंशन करेंगे, जब आप अपनी बात सामने रखेंगे, अगर न्यूज रूम में इस तरह के अवेयर जर्नलिस्ट जाएंगे जिन्हें पता होगा कि अगर किसी सेलिब्रिटी की मौत होती है तो उसकी कवरेज कैसे करनी चाहिए, अगर वो सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड की कवरेज कैसे होनी चाहिए, किस तरह की न्यूज हम लिख सकते हैं, किस तरह की न्यूज हमें नहीं लिखनी चाहिए, तो वो इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारे सीनियर्स उस चीज को माने या ना माने, उस सजेशन को लें या ना लें, लेकिन वो इंटरवेंशन जरूरी है। जब तक हम बोलना नहीं शुरू करेंगे और धीरे धीरे जब ये नंबर बढ़ेगा, तो शायद कुछ चीजें चेंज होंगी। और मीडिया में जिस तरीके का मॉडल चलता है, इकोनॉमिक मॉडल जो उसका है, या और जिस तरह के नेक्सस हैं पॉलिटिक्स और मीडिया में, उस नेक्सस ये सब चीजें, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक फैक्टर नहीं है जिसको एकदम से आपको सोल्यूशन बता देंगे टूट जाएगा, वो धीरे धीरे ही चीजें आएंगी। और मुझे लगता है कि अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अच्छे पत्रकारिता का स्पेस खत्म हो गया हो। मतलब इतने साल हो गए हैं इंडिया में और बहुत सारे हमले हुए जर्नलिस्ट पर और बहुत सारे जर्नलिज्म पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपना काम कर रहे थे वो लोग अपना काम कर रहे थे। और आज तक भी कम से कम ये कहने को तो ये है ही कि अ, भारत में इंडिया मीडिया इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर चाइना की तरह कंट्रोल नहीं है कि आपने सारे सारे में अपने पैसा डाल दिया है, सारे चैनल्स में या मीडिया हाउसेस में, और उसको कंट्रोल कर लिया और जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप दें। अभी तक तो यही है कि अ, सब इंडिपेंडेंट ही है, और इसको इंडिपेंडेंस इसकी बनी रहे उसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, यही सोल्यूशन ये है कि आप इंटरवेंशन जरूर करें। तो मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया है मुझे बोलते हुए, और हम अगर आप सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं इस किसी बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत सही कहा, कई सारी जानकारी आपने ये भी बहुत सही कहा कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को न्यूज़ देना चाहिए और उनको अपने व्यूज देने से बचना चाहिए, और जो आगे के पत्रकार बनने वाले हैं, जो देख रहे हैं, दर्शक हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमें कौन सी सही जानकारी लेनी है और भ्रामक जानकारियों से किस तरह से दूरी बनानी है। तो अब मैम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल है माखनलाल चतुर्वेदी से, स्टूडेंट हैं अमित चौरसिया, उनका सवाल है, क्यों आज ऐसा हो रहा है कि न्यूज चैनल इतनी टीआरपी की रफ्तार में है कि बार बार माफी मांगनी पड़ती है? पत्रकारिता को क्यों रेस बना दिया है, जबकि आपकी एक गलत खबर से कोई भी एक धर्म समुदाय प्रभावित हो सकता है? ये सही बात है अमित। टीआरपी का रेस अब सोशल मीडिया, मतलब अभी बेसिकली जो टूल्स हैं वो बहुत तरह से चेंज हो गए हैं हमारे मीडिया में। 10 साल पहले ये हालात नहीं थे, मतलब कितने लोग फेसबुक पे होंगे, कितने लोग ट्विटर पे होंगे, कुछ भी नहीं था उस तरह से। और खबरों का, अगर आप किसी अखबार से कोई गलती भी हो जाती थी तो अगले दिन उसकी माफी छाप दी जाती थी और बता दिया जाता था कि ये शायद ये फैक्ट हमसे गलत हो गया है, और इस तरह का आउटरीच देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से सीरियसली मीडिया बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और
मीडिया की वजह से सोशल मीडिया भी काफी चेंज हो गया है। जो मीडिया में जिस तरह की खबरें आती हैं उसी तरह से सोशल मीडिया पे रिएक्शंस आते हैं लोगों के, और जिस तरह से सोशल मीडिया अपना रिएक्शन दे रहा है, मीडिया उस तरह से अपनी चीजें तय कर रहा है। तो ये सच बात है कि टीआरपी रेस तो है ही, क्योंकि जैसा मैंने अपने लेक्चर में भी बोला कि एक मॉडल जो है इकोनॉमिक मॉडल, वो बहुत मतलब हर लगभग हर एक जो मीडिया हाउस का वो सेम ही है। और वो एडवर्टीजमेंट्स की वो भूख है, और जिस तरीके से अब नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अभी यूट्यूब पे कितने सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स बन गए हैं। जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब भी आ गया है और बहुत लोग अपने आप ही अपना चैनल चला रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं वहां पर, या कोई एक्सपर्ट ओपिनियंस दे रहे हैं, तो वहां पर उनको कंपटीशन भी पड़ गया है चैनल्स का। तो फर्स्ट टाइम मतलब एकदम से ब्रेकिंग देने के चक्कर में, और दूसरा जिस माफी की ये लोग बात कर रहे हैं अभी, देखा जाए तो क्योंकि जब हम जानते ही नहीं है किसी चीज के बारे में, हमारी कोई नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में, और हम उसमें ओपिनियन देने लगते हैं, तो फिर माफी की ही नौबत आती है। यही तो प्रॉब्लम है कि जब आप उस चीज के बारे में, आप आपने जो 4 लोग बैठा रखे हैं एक्सपर्ट्स, मतलब जिसको आप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या जो 4 लोग आपने ओपिनियन देने के लिए बैठा रखे हैं, फिर फिर पत्रकार किस बात के लिए ओपिनियन दे रहा है? आप तो बस आप अपनी बात करें, आप अपना एक सवाल सीधा रखेंगे और 4 लोग उस पर जवाब देंगे। कोई उसके पक्ष में बोलेगा, उसके विपक्ष में बोलेगा, तो डिबेट तो यही होती है। बट इट इज ऑल अबाउट, मतलब इट हैज बिकम अबाउट जर्नलिस्ट ऑल्सो। मतलब वो जर्नलिस्ट को लगता है कि मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट दिखूं, और मैं भी उतना ही मजबूत दिखूं, मैं भी एक नेता की तरह दिखूं, और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, मैंने उसकी बोलती बंद कर दी, मैंने उसको चुप करा दिया। और ये सब चीजों के चक्कर में आप किसी भी इस तरह की बातें कहने लगते हैं, जबकि एक्सपर्ट को बोलना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है, वो कोई बात बोल रहा है, तो उसको कुछ दूसरा इस्लामिक स्कॉलर उस पे जवाब देगा। आप कैसे जवाब दे सकते, जब आपने कोई पढ़ाई नहीं है वो उसके बारे में, आप इस्लाम अपना रिलीजियस रिलीजन के जानकार हैं ना, आप हिस्ट्री के जानकार हैं, आप किसी भी चीज के जानकार नहीं है, तो आप किस बात पे अजीब तरह के क्वेश्चन या उसके ऊपर जवाब देने लगते हैं? तो ये प्रॉब्लम है। कि आप अपने को इतना बड़ा मान गए हैं, कोई एंकर अपने को इतना बड़ा मान लिया है, उसने पत्रकार ने अपने आप को इतना बड़ा मान लिया है कि उसको लगता है कि मैं कहीं से कमजोर ना दिखूं, मैं इसको जवाब दे दूं सीधा, जबकि आप जानकार नहीं, आप अपनी ओपिनियन कैसे बना रहे हैं? तो ये इसलिए शायद इसका प्रॉब्लम है, नॉट नॉट जस्ट टीआरपी। लेकिन हाँ, जैसे बिग बॉस, मतलब मुझे तो अब लगता है कि बिग बॉस से ज्यादा व्यूवरशिप अब न्यूज चैनल्स की है। लोग वहां पे झगड़ा देखने कम जाते हैं, यहाँ पर झगड़ा देखने ज्यादा जाते हैं न्यूज चैनल्स पे। तो वो उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम इस तरह से बना दिया है कि लोग उस पर एंटरटेनमेंट ज्यादा खोजते हैं। तो वही है कि अब वो एंटरटेनमेंट मिल रहा है उनको, वहां पर भी जाकर की लड़ाई झगड़ा, उसने उसको चुप करा दिया, उसने बोल दिया, आप अगर देखेंगे, अगर आप सामने आपके पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही है, 2 लोग लड़ रहे हैं, आप रुक के देखते हैं ना उस लड़ाई को? मतलब आपका उससे कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं ना, आप उसको चुप भी कराने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको मजा आ रहा है। दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। वही हो रहा है। अगला सवाल मैम डॉक्टर पीसी सिंह का है। क्या भारतीय मीडिया कोविड-19 की हो रही दिक्कतों को समझने में सफल रहा नहीं, या बिल्कुल कितना नहीं। सफल रहा? वही उस मैंने पूरा लेक्चर, मतलब ज्यादातर उसमें वही पॉइंट्स उठाए हैं कि नहीं, उसको ना ही सफल रहा। आप सोचिए, जब 27 जनवरी को बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि एक स्पेशल हॉस्पिटल बन रहा है चीन में कोविड-19 के लिए, तो सोचिए कि एक बड़ी बात थी, चाइना में अगर बन रहा है हॉस्पिटल, कि उनको स्पेशल बनाना पड़ा इसके लिए, तो ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि भाई वहां से लोग किसी दूसरे देश में भी जाएंगे, दूसरे देशों से इंडिया में भी आएंगे, चाइना से भी आएंगे, ये यहाँ पर भी फैलेगा। शायद 30 जनवरी को पहला केस यहाँ पर रिपोर्ट हुआ इंडिया में, और उसके बाद से और 10 मार्च तक 53 केसेस थे। मैं आपको बताऊं, मतलब इतनी इतनी कम रिपोर्टिंग हो रही थी इसके बारे में, और इतना कम लोगों को ध्यान था, हमारी हेल्थ सर्विसेज का भी बहुत कम ध्यान था, हमारी सरकारों का भी कम ध्यान था, हमारी मीडिया का भी कम ध्यान था, कि 10 तारीख तक हमें सिर्फ 53 केसेस ही मिले थे, और उसको भी हम कंटेन नहीं कर पाए। 30 जनवरी को जो पहला केस आया था, वहीं से कंटेन नहीं कर पाए। ये बहुत सारा मीडिया ने नहीं उस तरह से सोचा। और मैंने जैसे बोला कि मीडिया का काम है, मतलब मीडिया पब्लिक डिबेट सेट करता है। आप कुछ भी कह लीजिए, मीडिया को आप कितना ही गाली दे लीजिए, मीडिया के बारे में आप कुछ भी, आप उसको सोचिए हम तो नहीं देखते, बेकार है ये। लेकिन आप नहीं देख रहे, मतलब आप बिल्ली अपनी आंख नहीं, अगर कबूतर अपनी आंख बंद कर लेगा, समझ लो ये नहीं कि बिल्ली नहीं है। तो वही बात है कि मीडिया तो जो कर रहा है, उस पे जो सच में जो अवेयर लोग हैं, उनका इंटरवेंशन जरूरी है। उन मीडिया से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने इस पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की इतने साल से, मतलब इतने महीने से जो इतनी चीजें चल रही थी, आपने जाकर तभी आपको लॉकडाउन करना पड़ा सरकार को, तब जाकर आप इस पे जागे हैं कि हमें इस पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और फिर उसके बाद एकदम से जो चीज हुई,
आपके हाथ पैर ठंडे हो गए कि अब हम बात क्या करें इसके ऊपर, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास रिपोर्टर नहीं है उसको लेके। तो ये हालात हुए। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया इसको समझ पाया है, और आगे भी पता नहीं कितनी बीमारियां होंगी, या क्लाइमेट चेंज आएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत तरीके की इश्यूज हैं अभी भी इंडिया में आएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम रेडी नहीं है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितनी होंगी उसके लिए भी हम रेडी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप देखिएगा किस तरह की रिपोर्टिंग होगी। जी। सर ये बहुत आप डिटेल एक टॉपिक समझा रही हैं। एक क्वेश्चन फेसबुक लाइव हुआ है तो शेयर करना चाहती हूँ ताकि जिन्होंने पूछा है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। ये जहीर दल का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस इन मीडिया? आप फिर से थोड़ा सा बताइए मेरे को, आपके आवाज थोड़ी इको हो रही थी, आप बताएंगे हिमांशु क्या पूछ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जहीर दल ने ये क्वेश्चन पूछा है फेसबुक में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस इन मीडिया? हाँ, तो जितना मैंने आपको बोला कि जो कैपिटल, अपने लेक्चर में मैंने बात की कि जो कैपिटल मॉडल बन गया है, कैपिटलिज्म का कब्जा कर लिया गया है न्यूज रूम पे। अभी एडिटोरियल पॉलिसीज एडिटर्स नहीं डिसाइड करते हैं, वो यही जो कॉर्पोरेट है वो उसको डिसाइड कर रहा है। जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम उन्होंने वहां पे बैठा रखी है वो डिसाइड कर रही है कि हमारे को कितना बिजनेस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, किस प्रोग्राम पे टीआरपी आ रही है, और उस टीआरपी की वजह से कहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ रही है। तो कॉर्पोरेट का तो बहुत ज्यादा दखल है, और जो कॉर्पोरेट का बहुत ज्यादा दखल है उसी तरह से उनके इश्यूज पर भी ज्यादा ध्यान जाता है, उसकी कवरेज ज्यादा होती है, या उन इश्यूज को दबा दिया जाता है। जैसे ही आप, अब आप सोचिए जैसे आप कॉर्पोरेट पे जैसे ही आप कोई रिपोर्ट करने लगते किसी एक कॉर्पोरेट हाउस पे, किसी बड़े बिजनेस हाउस के ऊपर, वो इतना पावरफुल है कि अगले ही दिन उसके ऊपर कोर्ट से आदेश ले आता है कि उस पर रिपोर्ट ना की जाए, और उसके ऊपर पूरा मतलब वो खबर ही पूरी दब जाती है, उसके बारे में बात ही नहीं होती है। तो ये सच बात है, कॉर्पोरेट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है मीडिया में इस वक्त, एडिटर्स का नहीं है। एडिटर पॉलिसीज नहीं डिसाइड कर रहा। बहुत, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे एडिटर्स बहुत अच्छे एडिटर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बस ही नहीं है अपने कंटेंट पे, वो नहीं डिसाइड कर रहे हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं वो मालिक जो हैं वहां के, और मालिक ज्यादातर कौन है आप देख लीजिए, या तो वो कोई कॉर्पोरेट हाउस के मालिक है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई राजनीतिक नेता है, वही उन लोगों का ही वो सब डिसाइड कर रहे हैं, नेक्सस वही है। मैम एक सवाल मेरा ही है, ऐसी महामारी में जो नए पत्रकार हैं वो किस तरह से रिपोर्टिंग करें, किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे जो कानून की रिपोर्टिंग कर रहा है वो कानून का जानकार उसे होना चाहिए, तो इस तरीके से जो इस महामारी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? जी, अब जैसे महामारी के वक्त में जैसे हमने जिस तरह से किया है इसकी रिपोर्टिंग, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स का पूल है उनकी बातों के हिसाब से, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, चाहे हेल्थ सर्विसेज में जो लोग हैं उनसे बात करके, तो इस उन एक्सपर्ट्स का ज्यादा ओपिनियन होना चाहिए। और जो आप पेंडेमिक में इसको बहुत सेंसेशनल ना बनाए आप, और बहुत ओपिनियन ना दें, और बहुत क्योंकि एक तरह नया वायरस है ये, हमारे वक्त में आया है, इसके बारे में कितनी ही जानकारी थी, किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है, साइंटिस्ट तक को जानकारी नहीं है, अभी वैक्सीन पे भी काम हो रहा है। तो उस वक्त में आप इस तरह की अगर ओपिनियंस देने लगते हैं कि गर्मी में तो ये ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो वो हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए कि हमें नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट भी अगर कुछ कोई बात कह रहा है तो उसमें वो कैविएट हमेशा होना चाहिए कि नहीं, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। तो उस तरह से इंफॉर्मेशन लोगों को देनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप किन किन चीजों बातों का ध्यान रखें, और किन चीज बातों का ध्यान किन चीजों को गंभीरता से ले, इस तरह की चीजों। और साथ ही जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो रही हैं, या बाकी हमारी जो बाकी जो न्यूज भी है वो भी किस तरह से अफेक्ट हो रही है, हमें ये भी देखना चाहिए। क्योंकि कोरोना के ऊपर इतना ज्यादा फोकस था कि जो बाकी चीजें हो रही थी देश में बारे में तो लोगों ने सोचा ही नहीं। मतलब
पीछे पीछे कितनी चीजें हो गई हैं, मतलब कितनी सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, कितने सारे और चीजें हो गई हैं, लेकिन सारा फोकस क्योंकि इसी पर था तो उस पर ध्यान ही नहीं गया। और कैसे हेल्थ सर्विसेज इफेक्ट हो रहे हैं और कैसे न्यूज इफेक्ट हो रही है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको सेंसेशनल ना बनाया जाए, लेकिन इसे पब्लिक डिबेट का मुद्दा जरूर बनाया जाए। आप उसको इतना इतना जरूर अपने उसमें रखें, अगर आप 24 घंटे का कंटेंट बना रहे हैं, कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि भाई आपकी हेल्थ सर्विसेज कहाँ है। मतलब ये ऐसे देश में जहां पर मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी प्रदेश में हर साल बच्चे मर जाते हैं, 100, 150, 200 लोग जो बच्चे मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। वहां पर जो गंभीर लक्षण होंगे कोविड-19 के, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, सोचिए यहाँ पर कितनी मौतें होंगी। आप सोचिए वहां प्रदेश के बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। आप सोचिए कि कैसे ये अगर ये और ज्यादा फैलेगा और ज्यादा इसकी जो चीजें होंगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी या ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो कहाँ से आएगी। तो वो इंतजाम शायद लॉकडाउन इसलिए किया गया कि वो इंतजाम इन महीनों में शायद हो जाए, लेकिन हेल्थ सर्विस का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। ये जब तक आपकी नियत में नहीं है, आपकी प्राथमिकता में नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब मैंने खुद रवि सर से एक उनके प्रोग्राम में मैं सुन रही थी, उन्होंने दिखाया कि हाँ सब स्टेडियम में अच्छे अच्छे वो बना दिए हैं, दिखा दिया कि हमने क्वारंटीन सेंटर बना दिया है, वहां पर लगे हुए हैं बेड्स लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन पाइप कहाँ है। तो मतलब ऐसा इंतजाम तो हम जो अपने गांव में बारात आने से पहले खटिया बिछा के चादर बिछा के कर लेते थे, तो ये तो वो इंतजाम है। इसमें क्या क्वारंटीन सेंटर, इसमें क्या लोग वो रहेंगे, क्यों रहेंगे ऐसे, तो फिर वो अपने घर में ही रह लेगा अगर उसको इसी उसमें रहना है। तो ये सब सवाल मतलब मीडिया के ही थे जो उन्होंने पूछने चाहिए थे। और लेकिन जल्दी जल्दी एक अर्ज, जैसे मैंने कहा एक अर्ज है कि जल्दी जल्दी बोले, अरे नहीं नहीं दिल्ली ने बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया, अरे नहीं नहीं इस प्रदेश ने बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया, अरे नहीं नहीं केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल तैयार हो गई है, सब कुछ बढ़िया है। और अब कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, शुरू में तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, हर पल पल खबर दी जा रही थी कोरोना के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी खत्म हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन जब पेंडेमिक हो तो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और हर एंगल से सोचिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन उस एंगल से सोचिए कोरोना का और कहाँ कहाँ प्रभाव हो रहा है। हमने जैसे ये एंगल भी बनाया, एक एक था कि महिलाओं और पुरुषों पे अलग अलग असर कैसे डाल रहा है। तो महिलाओं की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और उनके हेल्थ को देखते हुए या उनके बायोलॉजिकल इश्यूज को देखते हुए भी महिलाओं पे कैसा असर रहा और पुरुषों पे कैसा असर डाला। या वो जो डिस्क्रिमिनेटेड वर्ग हैं किसी भी देश में, चाहे ब्लैक्स हैं अमेरिका में या यूरोप में कोई और हैं, या यहाँ पर इंडिया में जैसे दलित हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, तो उन पर ये किस तरह से असर डालेगा, ये भी ये भी लोगों को बताया जाना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के जो लोग इतने गरीब हैं, इस देश में मेजोरिटी गरीब लोगों की है, तो वो लोग जो मतलब दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में भी एक दिन इसलिए नहीं जाते क्योंकि पूरे दिन की दिहाड़ी जाएगी, वहां पर उन लोगों का कितना ज्यादा असर होगा कोविड-19 का, कि कोई कोई उसका कोई मतलब सीमा ही नहीं है। तो ये सब एंगल से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ उसको बहुत स्ट्रेट उसमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई नहीं कोविड-19 कोरोना कोरोना बोलते रहिए कि हाँ जी यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ये है, इस हॉस्पिटल में ये नहीं है। उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पिछले भी जो पेंडेमिक्स हुए हैं चाहे किसी भी देश में, उन पेंडेमिक्स का भी अध्ययन करना चाहिए कि उन वहां पर कैसे निपटा गया या उससे किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हुए। ये सब चीजें भी जानना चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके उसको उसके आधार पर। थैंक यू सत्या। एक क्वेश्चन फेसबुक में जिनसी नोएडा के डायरेक्टर हैं एनान मोहंती सर, उनका क्वेश्चन है कि आपने अभी तक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म एंड एम आई ऑडिबल राइट? यस यस हाँ। आपने अभी तक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और फेक जर्नलिज्म की बात करी है, तो आप मीडिया को रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हुए देख रही हैं, या ऐसा कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो फेक जर्नलिज्म में इन्वॉल्व हुआ है? देखिए एक सीधी सी बात है कि वैसे तो हमारा ही काम है कि हम इस चीज को कॉल आउट करें कि हमारे मीडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो, अब वही बात है ना कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई प्रॉब्लम है तो उसी के लोग उसे कॉल आउट करें, हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर डॉक्टर फर्टिनिटी है तो डॉक्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है तो वो लोग बताएं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। तो मीडिया को भी वो बताना भी चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लेकिन
मैं इसलिए बचती हूँ इस काम को करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी भी मीडिया हाउस का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल नेता का जब भी आप एनालिसिस करते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उसको उसके पैटर्न को देखना चाहिए, उसके पुराने कई सालों के काम को देखना चाहिए, बयानों को देखना चाहिए। तो आप जब एनालिसिस करते हैं तो आप प्रॉपरली रेफरेंसेस देके, प्रॉपरली एट्रीब्यूशंस देकर तब आप उसका एनालिसिस करें। अभी मैं किसी मीडिया हाउस का नाम लूं कि जो फेक न्यूज में संलिप्त है मतलब मेरे दिमाग में है ऐसे, लेकिन मैं इसलिए उसको पब्लिकली नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये भी एक जर्नलिस्ट का ही एक तरीका है, एक जर्नलिज्म का तरीका है कि जब भी आप किसी के बारे में कहें तो प्रॉपर एनालिसिस और एट्रीब्यूशंस और फैक्ट्स के साथ बोले। आप उसको पूरा स्टडी करके बोले। इससे मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरा काम ही कर रहे हैं। अगर बुरा काम सभी लोग ऐसा कर रहे होते तो ढह जाता है ये देश अभी तक। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप सोचे जहां पर भी फासिस्ट गवर्नमेंट्स आई हैं, उन लोगों ने सबसे पहले मीडिया को ही इस्तेमाल किया है अपने फासिज्म को स्थापित करने के लिए। तो इसलिए मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। तो अगर मैं अच्छा काम भी अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, और वो दिखता भी है। अभी भी रिपोर्टिंग में भी दिखा, जो कोविड-19 की थी या उससे पहले भी जो क्राइसिस थे, तो हो रही है रिपोर्टिंग, लेकिन उनका नंबर अभी बहुत कम है। अभी भी मुझे लगता है कि उनका वो रीच नहीं है जो होना चाहिए। अ, मतलब अगर हर घर में टीवी सबसे ज्यादा, मैंने जितनी भी रूरल एरियाज में गई हूँ जहां पर भी रिपोर्टिंग की है, चाहे वहां पर इंसान के पास कोई और चीज हो ना हो, उसके पास टीवी जरूर है। तो टीवी की रीच जो बहुत ज्यादा है मतलब हमारे देश में, और जो टीवी की जो रीच है और उस न्यूज चैनल की जो रीच है, उसका अभी उसको तोड़ नहीं है। मतलब उसके मतलब उस अच्छे काम का या अच्छी जर्नलिज्म का रीच उतना नहीं है। फेक न्यूज बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन अगर आप फेक न्यूज पे बताएं कि हाँ ये फेक न्यूज थी, वो खबर बहुत कम फैलती है। नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। आप नेगेटिव कोई खबर दे देंगे, कोई डराने वाली दे देंगे, कुछ ऐसी चीज दे देंगे ना, तो वो ज्यादा फैलेंगी। आप अगर अभी मैं भी जाके ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई नॉर्मल चीज लिखती हूँ ना, बिना नेगेटिव एडजेक्टिव्स के, उसको लोग उससे एंगेज नहीं करते। लेकिन आप किसी के बारे में नेगेटिव एडजेक्टिव यूज कर दीजिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ है, चाहे वो किसी इंसान के खिलाफ है या किसी मुद्दे के खिलाफ है, लोग उससे एंगेज करते हैं। तो ये कि ये जो मीडिया लिटरेसी है हमारे देश में, और जिस तरह से लोग अभी उनको आदत पड़ गई है बहुत सेंसेशनल चीजें देखने की, और या भड़काऊ चीजें देखने की, और तो वो उससे निपटना तो भी बहुत मुश्किल है। तो मैं अब ये कर रहे हैं लोग अच्छा काम, वो भी हैं, और बहुत लोग बहुत बुरा काम भी कर रहे हैं। तो मैं इसी पे अपनी बात अंत करूंगी। एक सवाल और है मैम, अमित चौरसिया जी का ही एक सवाल है। क्यों जिक्र सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान का ही होता है? क्यों उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं दिखाई जाती है? हाँ, तो ये वाली बात जब मैंने भी कहा कि महानगरों की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है कोविड-19 को लेके, उसमें दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद की नहीं है, उस तरह से यस रिपोर्टिंग नहीं मैम। दिख रही है। जबकि अहमदाबाद में इतना ज्यादा मतलब बीबीसी ने तो खैर रिपोर्टिंग किया है, क्योंकि मतलब देखिए कि हम एक इंटरनेशनल मीडिया है, और उसको भारतीय मीडिया में जो हालात हैं उसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हम लोगों का इकोनॉमिक मॉडल एकदम डिफरेंट है। हम लोगों पर वो एडवर्टीजमेंट्स तो है ही नहीं बीबीसी पे, कोई हम लेते ही नहीं है, ले ही नहीं सकते। तो वो मॉडल है ही नहीं यहाँ पर कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी तरह से हमारा हैंड ट्विस्टिंग कर सके। तो वो अलग है। हमने वो किया है कि गुजरात में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं एकदम कोविड-19 के वक्त में बहुत ठप हुई, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, वो सब किया है। लेकिन ये आपने मेन स्ट्रीम मीडिया जो बाकी है भारतीय मीडिया, उसमें नहीं देखा होगा ये सब। तो ये क्यों नहीं दिखाया जाता, ये जवाब सवाल पूछने वाले को भी पता है। इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछ रहा है उसे मालूम है, उसने ये चीज नोटिस कर ली है कि मुझे वो चीज नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं जो सवाल ये कर रहा है उसको फिर भी एनालाइज करना चाहिए जाकर, और तभी किसी ओपिनियन पर पहुंचना चाहिए। कि जाइए यूट्यूब पर पिछले 10 प्रोग्राम देखिए किसी चैनल के, और ये पिछले 10 दिन के, और फिर देखिए कि उन्होंने उस 10 दिन में कैसे काम किया है, और बाकी किसी और 10 दिन में कैसा काम किया है। उससे आप एक आपके पास एक एक प्रॉपर फैक्चुअल एक ओपिनियन होगा उस पे, कि हाँ यार इन्होंने ये चीज नहीं दिखाई है और इन्होंने ये चीज दिखाई है। तो उससे अपनी ओपिनियन बनाइए। यस मैम। मेरे कहने से ओपिनियन नहीं बनाइए, किसी के भी कहने से ओपिनियन मत बनाइए। बल्कि मेरी अगर ओपिनियन है उसको क्वेश्चन कीजिए। मेरे हिसाब से यही सबसे बढ़िया तरीका है। इससे मुझे भी ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होगी
और मैं ज्यादा तैयार होकर आप लोगों से बात करूंगी। इसी तरह से जब आप किसी जर्नलिस्ट को क्वेश्चन करेंगे, किसी मीडिया हाउस को क्वेश्चन करेंगे, तो शायद उसको ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो ज्यादा तैयारी के साथ आपसे बात करेगा। तो ये हमारा भी कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है, मैं ऑडियंस के नाते भी कह रही हूँ बात, कि हमारा भी एक फर्ज बनता है नागरिक होने के नाते, ऑडियंस होने के नाते, कि हम वो क्वेश्चन करें। तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से चाहे सरकार जवाब देगी और बाकी जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस जवाब देंगे। तो जब तक हम ही नहीं कर रहे हैं या हमारी ही प्राथमिकता में हेल्थ सर्विसेज नहीं है, तो फिर हम एकदम से जब क्राइसिस आ गया तब क्यों पूछ रहे हैं कि कहाँ है जी हॉस्पिटल बेड, कहाँ है हॉस्पिटल्स, कहाँ है। ये तो आपने कभी इसके बारे में, इस पर तो कभी वोट भी नहीं दिया है। मतलब कैग रिपोर्ट आई थी 2017 में, जिसके ऊपर एनडीटीवी में मैंने भी पूरा प्रोग्राम किया था इसको लेके, हेल्थ सर्विसेज को लेके। कैग रिपोर्ट थी, पूरे देश के राज्यों की हेल्थ रिपोर्ट, वो थी ऑडिटिंग रिपोर्ट थी। और उसमें जो 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 तथ्य दिए गए थे, जिस तरीके से कितनी खस्ता हालात है, कितने डॉक्टर्स की कमी है सरकारी अस्पतालों में, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो, उनकी क्या हालत है, मतलब हर चीज दी गई है। लेकिन कितने लोगों को पता है कि कैग रिपोर्ट में, कि ऑडिट में क्या निकल कर आया है। कैग रिपोर्ट तो भाई मतलब इंडिपेंडेंट एक भारत का एक वो है ना, कि जो ऑडिट कर रहा है और जो बता रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, वो हमने तो नहीं बताई है, मैंने तो अपने सर्वे से नहीं बताई, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। और फिर आज 2020 हो गया, 3 साल बाद, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट जारी करता है, अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट जारी करता है, स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि अगले 4-5 साल में क्या होने वाला है, मेरे सामने क्या खतरा आने वाला है। तो ये तो सबसे पहले हमें मालूम ही है, अभी 2025 में या 24 में क्या होने वाला है हमें आज ही वो रिपोर्ट पता होगी। लेकिन मीडिया उसको दिखा कहाँ रहा है, उसे बता कहाँ रहा है, लोगों को अवेयर कहाँ कर रहा है कि आप 4 साल बाद ये एक्सपेक्ट करिए। जो आज ये चीजें हो रही हैं इस तरह के वायरस के बारे में, ये 5 साल पहले बहुत सारे देशों के स्टेट डिपार्टमेंट्स ने ये बात कह दी है। अमेरिका में भी हो चुकी है, लोगों को पता था कि 2020 में ऐसा कोई वायरस आने वाला है, इसका खतरा है। कौन प्रिपेयर्ड था? तो अभी इतने अपने जो छोटे शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट हैं, उनके लिए सारी सरकारें तैयार होती हैं कि उनको अपनी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट देखने के, अभी मैं इस साल में यहाँ ये वाला जीतना है, ये राज्य जीतना है, ये वो जीतना है। मीडिया अपने हिसाब से उसी हिसाब से काम कर रही है कि जहाँ पे भी हमारा शॉर्ट टर्म ये है कि भाई टीआरपी आते रहे, एडवर्टीजमेंट मिलते रहे, हमारी तनख्वाह मिलती रहे, हमारा कॉर्पोरेट हाउस चलता रहे। तो वो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई सोचता नहीं है। लॉन्ग टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी पेशेंस की जरूरत है, कि उस पेशेंस की और स्ट्रैटेजी की जरूरत है, वो है नहीं। तो वो आज कहना, अ, सोचना कि जब सर पर पड़ गया 2017 में, जब हमें मालूम है कि हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स है, तो 3 साल में क्या ठीक हुआ? कुछ भी नहीं। तो अगर आज वो ठीक होता तो शायद हम इस क्राइसिस से ज्यादा बेटर तरीके से निपट लेते। लंदन का एक थिंक टैंक है लेगाटम, उसकी रिपोर्ट आती है हर साल, और वो प्रोस्पेरिटी इंडेक्स बनाता है कि कौन सा देश प्रोस्पेरिटी में किस रैंक पे है। उसी प्रोस्पेरिटी रैंक में एक हेल्थ इंडेक्स भी होता है। तो हेल्थ इंडेक्स में जो लोग अच्छे रैंक पे थे उस इंडेक्स के हिसाब से, उन्होंने कोविड-19 से अच्छे से निपटा। जापान दूसरे नंबर पर था हेल्थ रिपोर्टिंग, उसके जापान में बहुत अच्छे से निपटा कोविड-19 से। इसराइल था, इसराइल ने अच्छे से निपटा, और न्यूजीलैंड ने अच्छे से निपटा। और आप, भारत उसमें पता है किस नंबर पे? 109वें नंबर पर। मतलब कि लोगों के पास हेल्थ सर्विसेज की पहुंच ही नहीं है। तो ये कितनी सारी चीजें, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़े स्तर पर और एक पब्लिक डिबेट के हिसाब से लोगों के सामने पेश होनी चाहिए थी। तो आज जब मीडिया इस पे रिपोर्ट कर रहा है कोरोना पे, वो एकदम खाली है। मतलब उसको उसको मालूम नहीं चला जब एकदम से लॉकडाउन पे, मैं रिपोर्ट क्या करूं, मैं क्या चीजें बताऊं लोगों को, क्या बनाऊं? क्योंकि जर्नलिस्ट लोग कहाँ कर रहे थे इतने महीनों से, इतने सालों से काम ही नहीं कर रहे थे इस चीज के ऊपर। उनके नॉलेज भी नहीं था कि ये सब चीजें भी और हमें बताना चाहिए। इसलिए उनको समझ ही नहीं आता कि क्या क्या कंटेंट बनाएंगे। लेकिन ये कंटेंट जितना मैंने आपको बताया है, ये सबसे भी कंटेंट बन सकता है। बताया जाना चाहिए कि कोविड-19 से कौन से देश ज्यादा अच्छे हेल्थ इंडेक्स में, हम कहाँ पर हैं, कौन से हेल्थ इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं, और वो दूसरे देश कहाँ पर हैं। बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सर प्रिया। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वी कैन नॉट टेक ऑल द क्वेश्चंस, हमारा टाइम भी लास्ट में हो गया है। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। की तरफ से है कि क्या आप लास्ट मैसेज जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाह रही? ओके। मैं अब जब भी बात करती हूँ, कभी किसी कहीं लेक्चर में या स्टूडेंट से बोलना चाहती हूँ, तो पहली बात, मतलब कई सारी बातें वैसे तो बोलने के लिए, कि अब क्योंकि मुझे 9-10 साल हो गए हैं अब जर्नलिज्म में, और मतलब अभी भी मुझे लगता है जर्नलिज्म बहुत एवर इवॉल्विंग एक प्रोफेशन है।
जर्नलिस्ट कभी भी इवॉल्व होने से मतलब ऐसा नहीं है कि आज उसको आ गया, मैं 10 साल बाद भी ये कहूंगी मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे लगता है 20 साल बाद भी मुझे सब कुछ नहीं आ सकता है, 25 साल बाद भी नहीं आ सकता। तो हमेशा इस मानसिकता के साथ आए कि हमें अभी कुछ नहीं आता है, और ये बहुत एवर इवॉल्विंग एक प्रोफेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। क्योंकि मैं डॉक्टर भी रही हूँ। हाँ, मैं 2011 में मीडिया में आई थी, तो मैं वो प्रोफेशन भी देख चुकी हूँ, मैं लॉ भी पढ़ाई कर चुकी हूँ और LLB ऑनर्स। मैं 3-4 प्रोफेशंस में देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं बता रही हूँ कि मीडिया इन सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। और किसी ना किसी वक्त में आपको ऐसा मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, आपको लगेगा कि आज आपको बोलने की आजादी नहीं है वहां पर। मतलब आप देख लीजिए, IAS IPS को बहुत बड़ा चीज मानते हैं इस देश में, लेकिन क्या वो उनको आजादी है बात करने की, अपने पॉइंट रखने की? सैनिकों को आजादी है अपनी बात रखने की? और सरकारी नौकरों को चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे, उनको आजादी है बात रखने की? नहीं है। दे हैव दोज रूल्स एंड गाइडेंस। पुलिस पुलिस आपने कभी किसी पुलिस वाले को, हवलदार को बात करते देखा है मीडिया में? तो वो आवाज हम हैं उन सब लोगों की, और हमारे पास ये आजादी है कि हम वो बातें रख पाए और वो सब इश्यूज रख पाए सामने। कई बार हमें लगेगा, अभी मैं सच बता रही हूँ कि नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं चीजें, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों चीजों का ध्यान रखिए कि आपको अपना डेवलपमेंट भी सोचना है, अपना एज अ जर्नलिस्ट, कि आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, आप कितना और सीख रहे हैं और कितना अलग इंसान बन रहे हैं जो 10 साल पहले थे और अब क्या है। और आपको जो आप काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है कि आप कितना कहाँ कर पाए हैं। कभी कभी दोनों में ही आपको प्रॉब्लम महसूस होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये हर प्रोफेशन में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अपने बायसेस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सबके बायसेस हैं किसी ना किसी वे में, चाहे वो जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, इवन नेशन को लेकर। अब नेशन मतलब सब लगता है ना कि इंडिया के हिसाब से सब रिपोर्टिंग करें और इंडिया का हित सोचें और सब, लेकिन हम लोगों का, जर्नलिस्ट लोगों का ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ना हमारा कोई देश है, ना हमारी कोई जाति है, ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारा कोई जेंडर है। ठीक है, तो हम उस बायस में काम नहीं कर सकते, उस बायस में अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और अपने से मतलब अपने बायसेस के हिसाब से सोचना इजी है। आप जब दूसरा बंदा कोई चीज कर रहा है, उसके हिसाब से सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो किस मानसिकता में चीजें कर रहा है। तो मतलब बेसिकली, अगर आप आज प्रिविलेज की पोजीशन में हैं, तो अपने अंडर प्रिविलेज किसी इंसान के बारे में ज्यादा बात करिए मेरे हिसाब से। तो बहुत सारी बातें हैं लोगों को कहने के लिए, लेकिन हाँ, सोचिए कि लाइफ में अगर हम आए हैं इस दुनिया में तो हम क्यों आए हैं। थोड़ा इस बात पे सोचना चाहिए कि हम क्या काम कर पाए हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो अपने ग्रोथ को हमेशा एनालाइज करते रहिए कि हम एक इंसान के तौर पर कितना ग्रो हुए। तो दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम सभी सवालों का सटीकता से उत्तर देने के लिए। नहीं, और सटीक ये कुछ भी आप नहीं है। और सबसे अच्छा जो आपने कहा कि हमें अपने बायस्ड को कंट्रोल करना चाहिए, और ये लोगों को समझना होगा कि उन्हें किस तरीके से अपने बायस को कंट्रोल करना है, जैसा कि आपने बताया। और अब हम इस सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए हम जिम्सी के डायरेक्टर श्री SP त्रिपाठी सर को से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो आए और दो शब्द कहें। सर प्रिया जी नमस्कार आपको। हेलो जी सर, प्रिया जी नमस्कार आपको। नमस्ते सर। जी नमस्कार। टाटा एजुकेशन फाउंडेशन के मास्काम में आपका बहुत बहुत और अभिनंदन। इको कर रही है क्या? यह स्टूडेंट्स के हाथ से ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि कोरोना जैसी पैंडेमिक डिसीज कवरेज कैसे किया जाए, कितनी सतर्कता से किया है, इस पर मैं आज बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में हम सब लोगों को बताया। ये सही है कि जितना जरूरी है कि मीडिया रिपोर्ट से लोगों में खौफ न पैदा हो, जितना जरूरी है कि लोगों का मोरल डाउन ना हो, मनोबल गिरे ना, उतना ही ये शायद उससे ज्यादा जरूरी है कि सरकारी बस इंतजामी की खबर भी समाज को लगातार देते हुए सरकार और शासन की खबर निरंतर दी जाती है। इसके साथ भी जरूरी है कि जो खबर हो सतर्क हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्यूरेट हो, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हम लोग
यहाँ इंस्टीट्यूट में भी ये कोशिश करते हैं और जो प्रोफेशन में भी जो मैंने कोशिश की है कि उसमें एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस, इन 4 चीजों को सामने रख करके पत्रकारिता में काम करने की कोशिश की है। और वही जागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन में हम लोग बेसिक चीजों को सीखते हैं। हमें खुशी है कि आज आपने जो एक नई दृष्टि दी, कुछ चीजों को बहुत संजीदगी से, बहुत विस्तार से रखा, एक मोरल की बात रखी, ओपिनियन की बात रखी, फेक न्यूज की बात रखी, और इसे बच्चे कैसे सचेत रहे, सतर्क रहे, आगे कैसा काम करें। और जो मूल मुझे आपका लगा, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो, आगे क्या होना, आगे के तरीके की पीठ कवर करने को मिल सके। जैसे में आपने ये संकेत दिया क्लाइमेट चेंज, जब भी हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, आगे क्या क्लाइमेट को लेकर के कुछ कर सकते हैं। तो आज आपने संकेतों में या खोल के बहुत कुछ ऐसा बच्चों को बताया, या हम टीचर्स को भी वो जानकारी मिली जो हम प्रोफेशन में हमें, हम सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। जो आपने टिप्स दी, मुझे उम्मीद है कि जागर मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के कानपुर के और नोएडा कैंपस के दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों जगह के स्टूडेंट्स को इससे बहुत लाभ होगा। मैं जागर एजुकेशन फाउंडेशन और जागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन कानपुर के मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस वेबिनार को अटेंड कर रहे जागर एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ही जागर मास कम्युनिकेशन नोएडा कैंपस, जागर कॉलेज कानपुर, जागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कानपुर और जागर डिजिटल एनिमेशन के फैकल्टी, स्टाफ और डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर प्रिया जी, आपको एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद कि आज आपने अपने आधे पौन घंटे के वेबिनार में कुछ ऐसे विषय उठाए हैं जिन पर मीडिया में व्यापक बहस की जरूरत है, ताकि ऐसा मॉडल विकसित हो हम भय न करें, हम सच्चाई के साथ आए। हम केवल सरकार के लिए नहीं, ऐसा ही नहीं, हम समाज के लिए नहीं, सोसाइटी हमारा ट्रस्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जागर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन कानपुर को अपना कीमती समय दिया। हम लोग कभी फिर आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन चाहेंगे कि कुछ अन्य विषयों पर हमारे यहाँ के बच्चों को आप एनलाइटन कर सकें। बहुत बहुत अच्छा, मैं दिल से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी आज आपकी ये जो पूरी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।